Yes. So, my dear students, welcome back to chemistry class. We are talking about methods for the preparation of carboxylic acid. We had seen first three methods, one from nitrile and amide, second from acyl chloride and acid anhydride, and third is from ester. Ester mein we took two hydrolysis reaction, one acid hydrolysis, another is alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis is also known as saponification. And the fourth method in the previous class we had seen from alkyl benzene. अल्काइल बेंजीन के साथ प्रिपेयर करना है तो आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा एंड द मेथड इज व्हाट first we carry out oxidation by using alkaline KMnO4 followed by acid hydrolysis and the entire length of alkyl group bonded to benzene ring get oxidized to carboxylic acid finally. तो हमें पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट मिलता है व्हाट वी गेट हियर इज COOK potassium benzoate. This is a fixed product here. We get potassium benzoate, and this potassium benzoate on acid hydrolysis finally gives benzoic acid. So this gives benzoic acid. This is from alkyl benzene, fourth method. Now moving to the fifth method from alkenes, again by oxidation. और ये भी एक यूनिक मेथड ही है यहाँ पर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल रहा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. एंड एल्कीन्स भी कौन सा जो आपको रिंग में या आउटसाइड रिंग आपको डबल बॉन्ड एल्कीन्स मीन C डबल बॉन्ड C करेक्ट. तो यहाँ पर वी टेक द फर्स्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर आपका आवाज आ रहा है पर थोड़ा धीरे आ रहा है. अभी जब मैं बोर्ड के पास जा रहा हूँ शायद तब थोड़ा कम हो जाता होगा. अभी क्लियर आ रहा है ये? नो सर. नहीं आ रहा है. सर बहुत कम आ रहा है. बहुत कम आ रहा है. क्लियर है लेकिन बहुत धीरे आना तो चाहिए. मैं तो फुल वॉल्यूम में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना. और कोई नॉइस यहाँ पर कट करने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है. मैं देख यू मस्ट बी wondering कि ऐसा why this is happening, because I have taken all the care. Let us find out. Bluetooth is also not getting connected. चलिए देखते हैं अभी इसमें और क्या हो रहा है. और जरा वॉल्यूम बढ़ाऊं क्या मैं मेरा? नहीं सर अभी क्लियर है. अभी क्लियर आ रहा है. हाँ सर ठीक है. अनिरुद्ध, तो ये Yes, sir. एल्कीन्स हैविंग डबल बॉन्ड हियर. तो अल्काइल चेन में डबल बॉन्ड रहे या रिंग में डबल बॉन्ड रहे, they get oxidized by using acidified potassium dichromate into carboxylic acid. Here in the first example we have taken phenyl ethene. Phenyl ethene is heated with acidified potassium permanganate. It get oxidized into benzoic acid. यानी ये जो एल्कीन है that get oxidized to carboxyl group. See one interesting example, इसे आप मार्क करके भी रखेंगे. cyclohexene. When cyclohexene is heated with acidified potassium dichromate, अब यहाँ ये डबल बॉन्ड है ना. this
this get oxidized to, but a very interesting product we are getting, this get oxidized to carboxyl group. तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिल जाएगा एक ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज नेम्ड एज एडिपिक एसिड. This is not a ring compound. It appears to be a ring compound. In fact, it is what? Total number of carbon देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon, and out of those 6, 2 are carboxyl group. That means remaining 4 are CH2. तो ये बना आपका एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड का IUPAC नेम भी बोल सकते हैं आप. क्या हो जाएगा एडिपिक एसिड? हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन. 6 कार्बन इज हेक्सेनोइक एसिड. सही है, हेक्सेनोइक एसिड. लेकिन ये डाई हेक्सेनोइक एसिड है, तो कैसा हो जाएगा? पूरा नोमेनक्लेचर में हेक्सेन है ना, ई ड्रॉप नहीं होगा. हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. 6 कार्बन है टोटल, तो हेक्सेन लिया. 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ई ड्रॉप नहीं करेंगे. हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड एंड कॉमनली कॉल्ड एज एडिपिक एसिड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर 1,6 नहीं लिखा तभी भी चलता है ना? हाँ, ये टर्मिनल पे ही है, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही रहेंगे. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. इसीलिए ये नाम ज्यादा कॉमन. एडिपिक एसिड कैन बी कंसीडर फॉर all the purposes. Hexane dioic acid will also do, or hexane 1,6 dioic acid can also be taken. So not mandatory always to mention this, because carboxyl group, as I told you, is always at terminal position. तो देख रहे हैं आप, ये फंडा ध्यान में रहेगा कि जहां डबल बॉन्ड है वो ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जा रहा, कार्बोक्सिल ग्रुप. और ये साइक्लोहेक्सीन गेटिंग कन्वर्टेड टू एडिपिक एसिड. तो यहाँ का एक क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या रहेगा? हाउ विल यू गेट एडिपिक एसिड फ्रॉम unsaturated hydrocarbon, or how will you convert cyclohexene into डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे नहीं कौन सा होता है, इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. अब कभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल देगा, या फिर कभी आपको एडिपिक एसिड. इसके हिसाब से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते. हाउ विल यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सीन इनटू एडिपिक एसिड और इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. या फिर होगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ acidified potassium dichromate, or what happens when acidified potassium permanganate is heated with cyclohexene. What happens when cyclohexene is heated with acidified potassium permanganate. तो आपका आंसर रहेगा it get oxidized to adipic acid, और उसका फॉर्मूला एंड नोमेनक्लेचर. तो दिस इज व्हाट द फिफ्थ मेथड टू गेट carboxylic acid. Now we'll move to the sixth and a very important method. This is a very important method. Preparation of carboxylic acid from dry ice and Grignard reagent. And dry ice. We know what is the meaning of dry ice. It is solid CO2.
Dry ice is nothing but solid CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर देंगे तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस. तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस we can prepare carboxylic acid. Let us take this reaction. It's very simple. अब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती है, इतने बार रिपीट हो गया है. अब क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस. व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड CO2. तो मैं यहाँ CO2 को लिख देता हूँ. ये है CO2, सॉलिड CO2 और ड्राई आइस. React with Grignard reagent. Grignard reagent CH3MgI, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. कंडीशन बोल सकते हैं आप? प्योर एंड ड्राई ईथर रिफ्लक्स. यस, ये तो अपनी फिक्स वाली मेथड हो गई अभी, है ना? प्योर एंड ड्राई ईथर and they all to be reflux together. और यहाँ पर ये simple addition. What happens here? Addition में क्या होगा ये भी अब आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा. MgI, बेटा ये ग्रुप किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ. आप किसी भी एक ऑक्सीजन पे कनेक्ट कर दो and CH3 will be added to carbon. करेक्ट है? ये एडिशन के बाद एक प्रोडक्ट फिक्स मिलता है हमको और यहाँ पर Mg कॉम्प्लेक्स. हाँ, जिसको हम बोलते हैं Mg कॉम्प्लेक्स. तो मैं Mg कॉम्प्लेक्स भी लिख देता हूँ. और Mg कॉम्प्लेक्स मिल गया तो उसके बाद एक और स्टेप जो है वो भी बहुत कॉमन है. वो क्या है? एसिड हाइड्रोलिसिस. और एसिड हाइड्रोलिसिस काय से रिप्रेजेंट करेंगे? H+ से या H3O पॉजिटिव से. चलिए ये एरो मैंने दिखाया तो Mg कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. CH3 C double bond O and this oxygen combines with MgI OMgI. यहाँ पर आ गया तो क्या मिल जाएगा आपको? Mg कॉम्प्लेक्स. Mg कॉम्प्लेक्स की आपको क्या करनी है? एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस लिख दिया. H पॉजिटिव HOH. One side product is fixed. What is that? One side product MgIOH. MgIOH. तो ये MgI और ये OH मैंने ऊपर लिख दिया. साइड प्रोडक्ट निकल गया. अब बचा क्या है अपने पास में? अरे दिस मीटिंग हैज बीन एंडेड बाय द होस्ट. अपना होस्ट ऐसा क्यों किया आज? हाँ बेटा क्या हो गया? लावण्य, मृणाल, सर वो मीटिंग एंड हो गई है अपने आप? हाँ मालूम नहीं कैसे हुई. तो टाइमर भी नहीं है. एक बार ज्वाइन होकर देखते. हाँ मैं फिर से ज्वाइन करता ना. हाँ फिर से ज्वाइन करके देखना पड़ेगा. हाँ 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 ज्वाइन कीजिए फिर से. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम मेथड फॉर द प्रिपरेशन चल रहा था. कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस. सो हियर वी हैव टेकन ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2 and Grignard reagent methyl magnesium iodide. Methyl magnesium iodide. And this methyl magnesium iodide when reflux with pure and dry ether, it will give Mg complex. Mg complex, and this Mg complex on acid hydrolysis gives
acetic acid. So am I audible to everyone? यस सर. हाँ, अब बेटा बोर्ड भी दिख रहा है. चलिए, so देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर dry ice and methyl magnesium iodide. We are getting the main product carboxylic acid as acetic acid. CH3C double bond O. This O and H from the water will make OH, and this will constitute the carboxylic acid, that is acetic acid. Now in this method, the type of acid depends upon the type of Grignard reagent you are using, because this solid ice will remain one of the reactant is fixed. जैसे second example में the type of alkyl group, here see, here I am changing the alkyl group of Grignard reagent. Instead of CH3 I am putting here C2H5, and this is magnesium bromide. We have changed Grignard reagent, ethyl magnesium bromide. Accordingly, our product as a carboxylic acid also get changed. Propionic acid. Yes, also get changed. So here is dry ice or solid CO2, and reflux condition remains the same, pure and dry ether. We get an Mg complex here, और फिर से उसी तरह से this alkyl group bonded to carbon and NgBr bonded to oxygen, giving an magnesium complex OMgBr, and magnesium complex finally on acid hydrolysis will provide us carboxylic acid, and the one of the side product will remain always the same. So MgBrOH comes out here, MgBrOH, and the acid is C2H5, C double bond O and OH. H कहाँ से आ रहा है बेटा? Water से आ रहा है, तो ये H आ गया, and the acid is Propionic acid. Propionic acid. So this is the sixth method for the preparation of carboxylic acid using Grignard and dry ice. I was talking about the type of acid which we are getting depends upon the type of Grignard reagent we are using, है ना? तो आपको जब अगर मिलता है how will you get propionic acid from dry ice, propionic acid from dry ice, तब आपको Grignard reagent में वो कार्बन यूज करने पड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द एसिड. ओके, जैसे हाउ विल यू गेट एसिटिक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस, तब आपको यहाँ Grignard reagent में वन कार्बन, क्योंकि एसिटिक एसिड इज ऑफ टू कार्बन, वन कार्बन विल बी प्रोवाइडेड ऑलवेज बाय ड्राई आइस. Other carbon atoms should come from Grignard reagent. Are you getting me properly? Okay? तो Grignard reagent पे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा प्रिपेयर होने वाला है. So this is the sixth method for the preparation of carboxylic acid. Now once again, as usual, I request everyone to make a memory chart for the preparation of carboxylic acid, where all the six methods are included. है ना? Mostly in this method of preparation हम क्या यूज कर रहे हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन. लास्ट वाली मेथड में हमने Grignard reagent यूज किया था. Now we will move to the next aspect, that is physical properties of carboxylic acid. Physical properties of carboxylic acids. Now physical properties of carboxylic acid में अब
वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक तो पहले उसका फिजिकल स्टेट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी, है ना। तो पहले फिजिकल स्टेट देख लेते हैं कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में व्हाट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अप टू C9, यानी C1 से C9, अप टू C9 all carboxylic acids are liquids, है ना। फॉर्मिक एसिड रहने दीजिए, एसिटिक एसिड रहने दीजिए, all are liquid up to C9, all carboxylic acids are liquid, while higher carboxylic acids are waxy solid, यानी वैक्स के जैसे उसका अपीयरेंस होगा, वैक्सी सॉलिड्स। अब एक और पॉइंट यहाँ पर लिखना है, अप टू C9 all carboxylic acids are liquid and they have pungent smell or odor, pungent odor or pungent smell। जैसे आप एसिटिक एसिड का ओडर तो आप सब जानते ही होंगे। एसिटिक एसिड हम कहाँ यूज करते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ विनेगर, है ना। विनेगर जो आप खाते हैं, है ना, एज ए प्रिजर्वेटिव या टेस्ट मेकर, हम चाइनीज फूड आर्टिकल में बहुत यूज करते हैं विनेगर। तो विनेगर इज नथिंग बट 6 to 8% एसिटिक एसिड। 6 to 8% aqueous solution will be, aqueous solution of acetic acid is vinegar, जनरल टर्म है। अब वो विनेगर आजकल बहुत सारे टाइप के आने लग गए हैं, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। तो हम क्या लिखेंगे, एक याद करने के लिए, कभी मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, 6 to 8% aqueous solution of acetic acid is considered as vinegar, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10th में था। हाँ, ये होगा 10th में जरूर होगा, तो बहुत कॉमन है ये, तो दिस कैन बी रिमेम्बर्ड इजीली। और विनेगर का स्मेल, बात चल रही थी अपनी कि ओडर, विनेगर का ओडर आपको पता, इट इज वेरी पंजेंट, है ना। दिखता तो एकदम वाटर जैसा है, लेकिन जब आप उसका स्मेल लेके देखेंगे तो इट इज वेरी तीखा होता है उसका स्मेल, है ना। तो वी कॉल दैट एज पंजेंट ओडर। और जो हायर मेंबर है, दे अपीयर्स टू बी इन वैक्सी फॉर्म, वैक्स के जैसे उसका अपीयरेंस होता है, वैक्सी सॉलिड। ओके, नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ये इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of carboxylic acid is higher than alkanes, ketones, ether, even alcohols, because मैंने इसे मार्किंग किया है, इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज carboxylic acid produces intermolecular hydrogen bonding, और वो भी कैसी है, it forms two intermolecular hydrogen bonding। अब देखेंगे वैसे कैसे intermolecular hydrogen bonding आती है, and available as dimer। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। One carboxylic acid molecule, I take another carboxylic acid here, RC double bond O OH। देखिए बॉन्डिंग के चांस बन रहे हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस, रेड
रेड कलर से मैं थोड़ा सा वो बॉन्डिंग, अब रेड कलर नहीं दिख रहा, ब्लू से ही बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए बेटा, दिस इज वन कार्बोक्सिलिक एसिड, this is another carboxylic acid. Oxygen carries negative charge. They create intermolecular hydrogen bonding, and this molecule is a single molecule, appear as dimer, appear as dimer. तो ये दो नहीं, इसको हम एक ही मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास निकालते हैं एस्टिमेशन के वक्त में, तब ये पूरा एक साथ काउंट करते हैं। एक RCOOH एक नहीं, इट इज 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर दिस इज व्हाट द intermolecular hydrogen bonding. So why carboxylic acid has higher boiling point than those compounds which have almost similar molar mass, है ना, जिनके similar molar mass, alkanes, ketones, ether, even alcohols. Alcohols में भी hydrogen bonding possible है, but carboxylic acid have higher boiling point than alcohol because carboxylic acid available in the dimeric form. ये डाइमेरिक फॉर्म को मैंने उस दिन कुछ समझाया था, मृणांक, अनिरुद्ध, है ना, लावण्या, डाइमेरिक फॉर्म को कैसे समझाते हैं? कैसे समझाया था कि वो दो बच्चों को पकड़कर हाँ, गोल गोल घुमाना। दो बच्चे जब आपस में एक दूसरे के हाथ पैर पकड़ ले, एक दूसरे का पैर पकड़े और दूसरा वाला पहले वाले का हाथ पकड़ेगा, और जब रोल करेंगे वो, है ना, तो रोल करते जाएंगे तो क्या दिखेगा? एक ही यूनिट दिखेगा, लेकिन रहेंगे 2 पर्सन उसमें, है ना, 2 पर्सन holding each other hand and feet and rolling down appears to be as a single unit. ये ऐसा ही है, इसका हाथ इसका पैर ये पकड़ लिया और इस तरह से फिर वो रोल होते जाते हैं। तो वो जादू का खेल, और जो दिखाते हैं सब अपने को, जादू तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा जो जिम्नास्टिक के टाइप का, तो उसमें ये डाइमर बन जाता है। तो ऐसे ही ये डाइमर है, एंड दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब इसकी सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी पे क्या हो जाएगा? लोअर मेंबर up to C4 are soluble in water, as they create hydrogen bonding, so they can create hydrogen bonding with water and can be easily soluble. But higher member are members are insoluble in water. तो उनकी सॉल्युबिलिटी काई में मिलने वाली है? हायर मेंबर की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यस, हायर मेंबर्स आर soluble in organic solvent. ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी वाला एस्पेक्ट हो गया। और विनेगर का तो मैंने लिखा दिया आपको। एक और लिखाते हैं पॉइंट यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये ग्लेशियल जो है ना वर्ड, ये ग्लेशियर से ही मिल रहा है अपने को, है ना। ग्लेशियर्स यू नो, है ना, ग्लेशियर्स जो हम देखते हैं, तो ग्लेशियर्स क्या होता है? आइस सॉलिडिफाइज in the form of glaciers. Big rock of ice is what we call as glaciers. तो ये आइस के जैसे बन जाता है एसिटिक एसिड। तो उसमें क्या करते हैं? प्योर एसिटिक एसिड 100% प्योर एसिटिक एसिड is condensed at 289, yes, 289
289.5 केल्विन। 298 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 298। तो ये उससे भी कम, बिलो 0 डिग्री, जब हम एसिटिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में है उसको कंडेंस करते हैं तो वो बन जाता है सॉलिड एसिटिक एसिड, एंड इट अपीयर्स लाइक अ ग्लेशियर, इट अपीयर्स लाइक अ आइस, सॉलिड फॉर्म में, है ना। इसीलिए हम उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये जब आप प्योर एसिटिक एसिड को कंडेंस करेंगे एट 289.5 केल्विन, देन क्या, एसिटिक एसिड get condensed and appears to be a solid ice। उसको कैसे समझा सकते हैं, ग्लेशियल क्यों बोला जाता है? जैसे आपने यहाँ पर ये कंटेनर लिया और इसमें प्योर एसिटिक एसिड ऐड किया, अब ये लिक्विड फॉर्म में है यानी इसमें वाटर भी होगा, तो ये आपने यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लिया। अब इसको कंडेंस करते हैं आप, है ना, इसको कूल करते हैं, इट इज कंडेंस्ड एट 289 केल्विन, एट 289.5 केल्विन। व्हेन यू कंडेंस दिस, तो इसमें से जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है ना वो क्या होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और जो वाटर है वो तो सॉलिडिफाई नहीं होता, water does not get solidifies। तो ये जो है ना ये ग्लेशियल के जैसे तैरते रहते उसमें, तो ये ग्लेशियर्स ऑफ एसिटिक एसिड अपने समझने के लिए हम बोल सकते हैं, दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन वाटर, क्योंकि ये जो वाटर है वो कंडेंस नहीं होता, एसिटिक एसिड 289.5 केल्विन पे वो कंडेंस हो जाता है and becomes solid, और फिर वो सॉलिड यहाँ तैरते रहते पानी में। तो क्या होता है, ग्लेशियर हमने देखा है कि ग्लेशियर्स दे स्विम इन वाटर, ऊपर तैरता हुआ दिखता है अपने को, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये हो गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और विनेगर भी हो गया, सॉल्युबिलिटी आ गई, डायमेरिक फॉर्म भी आपको समझ गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। Now we will move to chemical properties of carboxylic acid. This we will take in the next class. Chemical properties we will take in next class. Okay? Then see you tomorrow and we will discuss chemical Bye, sir. properties of carboxylic acid. Bye bye. Thank you very much for joining the class.